प्ले कर दें? चालू हो गया? Okay. First of all, but I'm sorry I'm quite late. But then, yeah, I understand. The word "quite" is not that quite for you. Was not feeling well, but still I had come to finish off with the syllabus part. इसलिए question number 8. मैं कहूँ घर पे बीमार हूँ ना तो मजा नहीं आती है, लेकिन तुमसे मिलूंगा सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इसलिए घर पे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। ये तुम्हारा वो आउट सुनने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का हमने 4 चीजें बनाने के लिए कहा था, तुम लोगों ने बना लिया? So give me 2 minutes. I'll draw it up. Better, let's start reading the sum. Abha and Beena are the partners of the firm, sharing profit and loss in the ratio 2:1. Their balance sheet as on 31/3 is as under: capital account of Abha Beena, general reserve, workmen compensation, investment fluctuation, creditors and bills payable. Whereas on the asset side, if we see, we have goodwill, then land and building, machinery, stock, debtors, investment, cash and bank, and advertisement campaign. Now they have admitted Rushil as a new partner on 1/4/2017 on the following conditions. Rushil will bring 1 lakh rupees as capital and 24,000 as amount of. टिक करना शुरू करो. The value of land and building is to be increased. तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करेंगे, मशीनरी को टिक करेंगे, डेटर्स को टिक करो. પછી इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला पॉइंट हम देख ले रहे हैं. और लास्ट एडजस्टमेंट जरा देखो. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को क्या दिया है? 2:1:2. So give the heading working note number 1. Always the first working when we are starting the sum of admission, always the first working लिखो. Calculation of sacrifice ratio. Working note number 1. Calculation of sacrifice ratio. Abha, Beena and Rushil. What's my old ratio? 2:1. So 2/3 and 1/3. बेटा नया रेशियो में देखो कितना दिया है. नया रेशियो क्या से गाभा 2:1:2. And then we need to calculate the sacrifice ratio. We need to calculate the sacrifice ratio. Now better tell me what's the formula for the sacrifice ratio? What's the formula? Sacrifice is old ratio minus new ratio.
that is 2 by 3 minus 2 by 5. I have told you in advance कि यहाँ पर अपने को ज्यादा बुद्धि कुछ नहीं चलानी है. 1 2 3 arrows. 3 5s are 15, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 4 by 15. बेटा ये सैक्रिफाइस किसका है? Then B's ना. 1 by 3 minus 1 by 5 again. The arrow 5 minus 3, that is 2 by 15. So बेटा अगर मैं इसको लिखूं 4 by 15 is to 2 by 15, 15 15 नीचे तो निकाल देना पड़ेगा ना, because 4 is to 2 doesn't come to 15. So sacrifice ratio अगर मैं देखूं तो it is 4 is to 2. और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है? 2 is to 1. अब देखो तुम्हारी तो स्कॉलर बैच है, एक ट्रिक जरा समझो. आंसर भले हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन एक ट्रिक जरा समझो. मेरा पुराना रेशियो कितना था? 2:1. नवे रेशियो में भी आभा को कितना मिल रहा है? 2. और बीना को कितना मिल रहा है? 1. तो अगर पुराना रेशियो 2:1 है, नवा में भी आभा और बीना को मिल रहा है 2:1, तो सैक्रिफाइस नीड्स टू बी 2:1. लेकिन वो हमने पहले कैलकुलेट करके मैंने तुमको प्रूफ करके बता दिया. અને પછી હું તમને આ દેખાડું પણ છું કે આવી રીતે પણ થઈ શકે. એટલે આપણે જે 2 મિનિટ આ વર્કિંગ બચાવવામાં લાગી ગયા અને વધારે ટાઈમ આપણે સમ પર આપી શકીશું. એટલે આ ફટાફટ વર્કિંગ જાતે થઈ જાય કે ભાઈ ઓલ્ડ 2:1 છે, ન્યુ 2:1 છે, તો સેક્રિફાઈસ પણ 2:1 જ હશે. એટલે એ વર્કિંગ પછી એક્ઝામમાં નહીં કરો તો પણ ચાલી જશે. बेटा समझाओ जो शुरू करो. एडमिशन का सम 15 मिनट में अपने को खत्म करना है. बोर्ड एग्जाम में यू जस्ट हैव 15 मिनट्स, जेमा आ 4 अकाउंट मेजॉरिटी इन ईच एंड एवरी सम वी नीड टू मेक. आर यू गेटिंग इट? कितने मिनट है? सिर्फ देखते हैं. चलो अपने को कितना टाइम लगता है. पुरानी बैलेंस शीट पर चले जाएंगे. हमने रीवैल्यूएशन के चैप्टर में जैसे शुरुआत करी थी, पुरानी बैलेंस शीट में से हम देखेंगे कौन कौन सी आइटम ये 4 अकाउंट में कहां कहां जा रही है, उसको लिखते जा रहे हैं हम. जिसमें भी एडजस्टमेंट है विल राइट दैट इन द इनर कॉलम. चलो पहलू सूचे जरा चेक करो. पहलू सूचे कैपिटल अकाउंट ऑफ आभा बीना कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, या लिखा जाए बाय balance brought forward 80,000 and 60,000 by balance brought forward 80,000 and 60,000. जनरल रिजर्व कहां जाएगा? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कैन आई से रिजर्व्स है, वो प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अच्छा लेकिन मुझे ये बताओ, तीनों में बांटू या आभा बीना में ही? तीनों में नहीं जाएगा. हमने 4th चैप्टर में क्या सीखा? रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स एंड दैट टू इन द. तो जरा मुझे बताओ तो ये कितने आ रहे हैं भाई? लिखा जाए, अमाउंट लिखा जाए 12,000 and 6,000. It is 12,000 and 6,000. 12,000 and 6,000 आभा बीना. Then next item कौन से लिखी है जरा चेक करो. वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व. वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व. अब उसके लिए देखो हमने ऐसी नोट लिखी थी कि वो रिजर्व भी है, लायबिलिटी भी है. एडजस्टमेंट में जरा चेक करो. एडजस्टमेंट में चेक करो, डू वी हैव एनी लायबिलिटी? क्या वर्कर को कुछ कंपनसेशन देना पड़ा, ऐसा कोई एडजस्टमेंट में है? तो अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो आप બધું જ प्रॉफिट થઈ ગયું.
जे मारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे मनुरे से तो लिखा जाए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा 4,500 है तो 3,000 अने 3,000 अने 1,500। बेटा પછી नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ ये रिजर्व मैंने किसके लिए बनाया है? इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कि मान लो अगर आज हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा, से इन द शेयर मार्केट, मैंने किसी कंपनी के क्या बाय करे? एंड कहना से शेयर्स के भाव कहना से अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है शेयर का प्राइस। तो कहना से अपवर्ड गया तो टेंशन नहीं है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है। भाव अगर बढ़ गया तो अपने को टेंशन, लेकिन मान लो शेयर के प्राइस गिर गए तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया किसके लिए है? कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर के अगर हमको लॉस हुआ तो वो लॉस हम उसमें से रिकवर कर लेंगे। लेकिन वापस जरा एडजस्टमेंट में देखो, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरने की कुछ बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट्स की गिरने की कुछ बात हो रही है? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स का कुछ भी गिरने का बात नहीं हो रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम नहीं हुई है, और ये जो हमने अब रिजर्व बनाया उसको अब यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जितना भी ये रिजर्व का पैसा है, अगेन इट इज माय, इट्स माय। ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल या बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पार्टनर्स में चला जाएगा। कितना है? 1,500। खाली बेटा पुराने पार्टनर्स में ही जाएगा बेटा। और ये क्यों गया पता चला? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, as there is no fluctuation in the investments, the entire amount kept as a reserve becomes my profit. Just like workers compensation, just like workers compensation, we have made a reserve but there's no liability, there's no information about then the entire amount is considered as my profit. Similarly, investment fluctuation, no fluctuation, entire amount is my profit. Then creditors में do we have any adjustment? Creditors, so where do we show creditors? Where do we show? क्या से बैलेंस शीट में liabilities में बता देंगे। तो creditors की अमाउंट है कितनी? 28,000. Then bills payable, can I say that will also go to the liability and the amount comes to how much? 12,000. The amount comes to 12,000. પછી बेटा असेट बाजू आई जाओ, असेट बाजू आई जाओ। अपने को पहली आइटम क्या दी हुई है? गुडविल। नाउ कैन आई से बैलेंस शीट में ये जो गुडविल की आइटम दी है, अब हम क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। तो ये सारा जो गुडविल बनाया है वो बनाया किसने है? ओल्ड पार्टनर्स ने। ये सारी गुडविल बनाई किसने है? तो ये गुडविल भी मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स में। नाउ यूज योर कॉमन सेंस। जे बधी आइटम लायबिलिटी में हती ए में पार्टनर्स कैपिटल में कई बाजू लख्यू? कई बाजू लख्यू? હવે અસેટ વાળી અગર આઇટમ પાર્ટનર્સ માં જાય છે તો इट विल गो टू द डेबिट साइड। सो यहाँ पर मैं सबसे पहली आइटम लिखूंगा टू गुडविल। कैन आई से अगेन उस पे हक किसका? हक किसका? ओल्ड पार्टनर्स। एंड दैट टू इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। 12,000 and 6,000. Can I say land and building में adjustment करूँ? Land and building में adjustment करूँ? तो we write 72,000 in the inner column. 2 लाइन छोड़ देंगे। मशीनरी
बेटा 40,000 we write that again in the inner column 40,000. Then stock कितना है? Any adjustment to stock? No. 36,000. डेटर्स कितनी है? 20. उसमें से बीडीआर ऑलरेडी उन्होंने कितना माइनस किया है? तो वो अभी मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं 2000. फिर जो एडजस्टमेंट है उसको अपने देखेंगे क्या करना है, एडजस्टमेंट में क्या है वो देख लेंगे. ठीक है. इन्वेस्टमेंट का क्या करूं? Investment 8,000 directly will go in the outer column. Investments. बेटा cash and bank will go to cash and bank account. बेटा which side? Debit side, credit side? Debit side के credit side. As it's on the asset side, we need to write it on the debit side. Balance brought forward 2,000. અને બેટા લાસ્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેમ્પેન एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो फिक्टिशियस असेट है. क्या है? Now if you remember our fourth chapter, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि accumulated profit, reserve, loss या तो fictitious सब किस में जाएंगे? Partners capital. Everything will go to partners capital. So again it's on the asset side. तो partners capital में it will come on the debit side. Advertisement campaign expenditure. कितनी अमाउंट बेटा? 4,000 અને 2,000. 4,000 અને 2,000. Better give the heading. Working note number 2. Working note number 2. Basic journal entries. Basic journal entries for adjustment number 1. Basic journal entries for adjustment number 1. बेटा जरा ध्यान देंगे. बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1 वांचो. एडजस्टमेंट नंबर 1 वांचो. रुशिल ने कितना कैपिटल वो लेके आया? रुशिल कितना कैपिटल लेके आया? 1 लाख. पहले हम उसकी एंट्री लिख रहे हैं. फिर गुडविल वाला जो 3 मैंने समझाया था वो रिवाइज कराऊंगा ने પછી આની એન્ટ્રી હું તમને ગુડવિલ ની કહીશ. પેલો રુશિલ 1 લાખ રૂપિયા कैपिटल લઈને આવ્યો. जरा हाथ ऊपर बेटा. कैपिटल લઈને આવ્યો એની શું એન્ટ્રી બને? ગુડવિલ सॉरी कैपिटल नहीं. 1 लाख रुपया रुशिल कैपिटल लेके आया. सेफ रुशिल कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेके आया है. तो ऐसा बोलने यार, तू क्या बोल रहा है? क्या आएगी एंट्री? क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू. बेटा नया पार्टनर बिजनेस में लेके आया 1 लाख रुपया कैपिटल. सर जर्नल एंट्री कहाँ आती है? मेरे को कुछ भी लिखो. इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू. बेटा चिल कैपिटल 1 लाख. बेटा तुम जितने ये 4 अकाउंट बना रहे हो उसमें जरा देख के तो कहो कहीं ना कहीं इसकी पोस्टिंग होगी. कहीं इसकी पोस्टिंग होगी. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. हर्ष हर्ष हर्ष. पार्टनर्स कैपिटल અને कैश अकाउंट में कहा? कैश अकाउंट में कहा? कैश अकाउंट में कहा? डेबिट
लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट में डेबिट, हाँ लिखो वही जाएगा, मैं भी वही बोल रहा हूँ। बेटा चिल कैपिटल અને પાર્ટનર્સ કેપિટલ में બાય કેશ અને બેટા ચિલ માં કેટલા 1 લાખ, ચિલ में it is 1 lakh। अने अब जरा देखो गुडविल भी क्या रुशिल कैश में लेके आ रहा है, तो बेटा अब जरा यहाँ ध्यान, तुम भूल चुके हो मुझे पता है, यहाँ ध्यान। गुडविल की हमने कितनी बेसिक एंट्रीज देखी? 3। उसमें पहली मेथड कौन सी थी? पहली मेथड कि नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा इन, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा इन, कितनों को याद है एंट्री? अर्शित, हर्षित, हर्षित, हाँ बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू અને પછી 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 प्रीमियम फॉर गुडविल टू इन સેક્રિફાઈસ કે ઓલ્ડ? આપણે અહીંયા બધું ઓલ્ડ થી કર્યું છે, હા, પણ આમાં या इट्स अ सेक्रिफाइस। तो कैश अगर लेके आया तो कैश टू प्रेम, प्रेम टू इन। दूसरी मेथड में क्या था कि अपने पास कैश नहीं है, कैश नहीं है, शू करूं कि पार्टनर के नावे कैपिटल में तो मुझे तब क्या एंट्री बनेगी? सेफ, हाँ, न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स इन and the third method is it's first and second method no combo partly and partly entry cash account debit, new partner capital debit, હવે આ ત્રણ માંથી આ સમમાં કઈ મેથડ છે? कैश वाली। सो हेडिंग मारो एंट्री फॉर गुडविल, हेडिंग मारेंगे एंट्री फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया बेटा कैश? 24 या। अच्छा आने लेजर पोस्टिंग कसे थसे बेटा? इसका लेजर पोस्टिंग कहीं पर होगा तो मेरे को होगा कहां? कैश अकाउंट में कहां? डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 24,000। अरे बेटा बीजी एंट्री सुबन से, बीजी एंट्री सुबन से प्रीमियम फॉर गुडविल इट्स डेबिट टू आभा। सर अगर नहीं भणिए तो निकली जैसे आभा। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल इज 24,000। आभा कैपिटल कितना जाएगा? आभा कैपिटल 16,000 અને બીના कैपिटल 8,000।
बेटा इसकी कहीं लेजर पोस्टिंग होगी? सर मुझे क्या पता कहाँ होगी। कई बाजू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, वेरी गुड। सो लोगों बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 18, 16 અને 8,000. ઓકે 16,000 અને 8,000. बेटा कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? अब बेटा फ्रॉम सेकेंड एडजस्टमेंट टू द लास्ट एडजस्टमेंट ऑल आर सो सिंपल कि that you don't need me, but as I am late we do it together, otherwise I would have given you to do it on your own. કે क्या ચોથા ચેપ્ટર નું જ હવે રિવિઝન થવાનું છે? જરા વાંચો શું કહે છે, જરા વાંચો। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने से? 70,000। तो यहाँ क्या करूं? लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करूं? अरे अगर इंक्रीज हो रही है तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? तो प्रॉफिट कई बाजू रिवैल्यूएशन ना लिखो प्लस रिवैल्यूएशन 17,000, सो 89,000 અને revaluation ના credit side by land and building 17,000, by land and building 17,000। देन मशीनरी की वैल्यू देखो ऐसा बोल रहे हैं डिक्रीज्ड अप टू, इट इज डिक्रीज्ड अप टू 32। मतलब क्या करूं? वैल्यू गिराओ, वैल्यू गिराओ, गिराते जाओ। कहां तक? 8,000 तक। तो यहाँ क्या करें हम? यहाँ क्या करें? लेस रिवैल्यूएशन 8,000, सो 32,000। ओके आने बेटा रिवैल्यूएशन में कहां टू मशीनरी 8,000 टू मशीनरी 8,000। बेटा बची provision for bad debt is to be kept at how much? 10%। provision for bad debt is to be kept at 10%। तो देखो मेरा डेटर्स 24,000 है ऑलरेडी, उसका मैं अगर 10% निकालूं तो कितना है बैड डेट रिजर्व? 2400। उसमें से 2,000 ऑलरेडी है मेरे पास। कितने चाहिए और? कितने चाहिए और? तो यहाँ पर बीडीआर में प्लस करो रिवैल्यूएशन 400, सो इट्स 2400। बीडीआर में 400 हम अगर ऐड करेंगे तो 2400, 21। अब जरा पुराने डेटर्स की वैल्यू कंपेयर करो बाहर वाले कॉलम में कितना है? 22 और इकड़े है 21,600। 22 से 21,600 हो गया। प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? कितना? 400। सो यहां पर हम लिख देंगे 2BDR 400। देन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है अपना? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 1100। अब जरा मुझे ये बताओ, ये मेरे लिए असेट है कि लायबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग बिल तो लायबिलिटी बढ़ी, प्रॉफिट के लॉस? प्रॉफिट के लॉस लिखा जाए आउटस्टैंडिंग
Electricity bill 1100. अरे बच्चे बोलो ना 1100. सो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किधर किधर किधर? ये रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट्स 1100. ओके. अरे बेटा नवा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो इंफॉर्मेशन था उसका हमने यूज कर लिया. बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने इंफॉर्मेशन यूज कर ली थी कि नहीं माटे? हाँ हो गया बेटा, वो हो गया, उसका सेटिंग हो गया है. अब मैं क्या करूं? सम कॉपी कराओ सर आगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्लोज करेंगे. विल फाइंड प्रॉफिट के लॉस. तो बेटा 17,000 उसमें से ये तीनों माइनस करो. कितना? 7500. अब बेटा एक और मिस्टेक करोगे तुम, क्योंकि हम तो सर मिस्टेक करने के लिए जायज हैं. ये जो 7500 है ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दिस इज माई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. वेरी गुड. क्या से अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो किस में बटेगा? रिवैल्यूएशन नो प्रॉफिट केमा वेचा से? ओल्ड के ऑल. बुरावती ओल्ड के ऑल. बेटा पुराने के सारे नवे. हमने कुछ 4th चैप्टर में इसकी नोट लिखी थी, याद है किसी को? देखो तो जरा, देखो तो नोट देखो तो. अगर वही बुक लेके आते हो, अगर तुम बेटा वही नोट लेके आते हो बुक, तो वो नोट तुम्हें मिलेगी. नहीं तो तुम बेटा ऐसी नोट हो जो डीमोनेटाइजेशन के बाद चलना बंद हो चुकी है. इट इज ओल्ड पार्टनर्स इन. मतलब देखो एक एक नोट मैंने जो सोच समझ के तुमको लिखाई है, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचरिस्टिक व्यू. सर इंग्लिश इतना मत बोलो, नहीं समझ में आ रहा है. तो हमारा ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट खाली पुराने पार्टनर्स में जाएगा, एंड दैट टू ओल्ड रेशियो. तो ये वापस लगोगा भा 20 ना 2:1. 5000 અને 2500. सर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और कहीं ना कहीं तो जाएगा, और कहीं ना कहीं तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. बहुत बढ़िया बेटा. ये प्रॉफिट है तो डेबिट साइड प्रॉफिट है. क्रेडिट में जैसे सर हमने तमे फूल करवानी कोशिश ना करशो, पहला दी छीए. But now what is the next step to be done? Close partners capital लिया. Close partners capital. मैं है ना रुशिल का टोटल करके तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं. अरे कुछ काम तो बांट लेते हैं. तुमको ऐसा लगे बुरा सम तुमने खुद से टोटल किया, मैं रुशिल का कर दे रहा हूं. देखो डेबिट क्रेडिट दोनों का कर दिया मैंने. तो सोचो स्पीड देखो मेरी, बीमार हूं फिर भी. हाँ बाबू चालू. सर तुम करते रहते हो ऐसा, कभी कभी महसूस हो रहा है कुत्ते के सामने. मतलब ए का टोटल है 1,17,000 78,500. So 1,17,000 and 78,500. बेटा ए ने 1,01,000 नो चालू કર્યો. 70,500. बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस कहां लेके जाऊं?
capital of Abha 20 ના અને બેટા ચિલ 1,01,000 अरे ये सीधा करके टोटल मत कर लेना कैश अकाउंट नो हजी क्लोजिंग करवानु बाकी छे बेटा टैली नहीं होगी बैलेंस शीट जो होती भी नहीं है कभी 1,26,000 so this is by balance carry forward 1,26,000 गधे अब बेटा ये कैश बैलेंस कहीं जाएगा it'll go to the asset side yeah cash and a bank account 1,26,000 3,12,000 बेटा ऐसा अगर तुम्हारे साथ कभी कभार ऐसा हो रहा हो ना कि भाई बैलेंस शीट टैली ना हो रही हो तो ये तुमको हिंट देगा कि कैश अकाउंट का कुछ सेटिंग करना तुम्हारा बाकी रह गया है अरे उसके बाद भी अगर टैली नहीं हो रहा है तो बेटा समझ जाना हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि हमने कभी एक भी बैलेंस शीट टैली नहीं करी है तो ये भी नहीं हो रही है तो दैट्स ओके मैं इतना करके खाली बैलेंस शीट टैली ना कर दो 8 में से 3 तो मिलेंगे 3 मार्क्स रिटायरमेंट में 5 मार्क फाइनल अकाउंट्स में 11 मार्क ત્યાં થઈ ગયા 10 માર્ક ના MCQ એટલે 21 જેવો પહોંચી ગયો બીજા 10 માર્ક નું તો ભણીને જઈશ ને સર એટલું થોડી ના એવું છે એટલે 33 પાક્કા છે આપણે તમે ચિંતા ના કરો 33 इज डन अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लगेगा कि मेहनत करी है क्योंकि पास होना इतना आसान है कि तुम कैलकुलेटेड चैप्टर्स करके भी जाओगे तो भी पास हो जाओ आर यू गेटिंग इट फेल होना मुश्किल है कि इतना भी करके नहीं करा इसलिए पास हो सकते थे हम लेकिन इट्स ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है इलस्ट्रेशन 22 इसके जैसा ही है करके आओगे यस Illustration 22 will be your homework. Okay. અને क्वेश्चन नंबर 9 છે ને આસ્તા આના અહીંયા ध्यान आस्था आना का ये 4 अकाउंट बना के आना सुनो 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 ये 4 अकाउंट्स बना के आना अरे आई वांट कि तुम लोग रुक जाना यार मेरे को बोलने दे मेरे को ये आस्था आना का इवन यू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो सममा इन्फॉर्मेशन बધી सफिशिएंट છે કે તમે આરામથી सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड કરી શકશો बेटा इतना करके आना बिकॉज बहुत सारे एडजस्टमेंट है और हर एक एडजस्टमेंट ऐसा नवा नवा है कि जिसको सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है तो ये आस्था आना वाला सम इंपॉर्टेंट है विदित विशाल वाला सम इंपॉर्टेंट है तो वो हम सारे करेंगे तो कल इतना करके आना है तुमको कितनी बातें करके आनी है the format you need to make then you need to also calculate the આટલું કરીને આવજો પછી આગળ સાથે સમ કરીશું ઠીક है yes or no